जो पहले आई थिंक सो 25, जो पहले जो 25 मार्क्स आते थे गुजराती में, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर एनी मोर. सो व्हाट यू शुड बेसिकली फोकस ऑन राइट नाउ इज studying the bare acts in English. Okay. Uh, I have also appeared for JMFC last year. Unfortunately, I could not clear it in mains due to Gujarati paper. नहीं तो hello. Yeah. Please mute yourself. Okay. So uh, I could not clear the paper in mains because of Gujarati. Just I lacked 1 mark. Otherwise, I had very good enough of marks to go for interview. मेरा ऑल टुगेदर 128 टोटल्स था मेंस में. और इनफैक्ट मेरा प्रीलिम में भी 78 आउट ऑफ 78 थे लास्ट ईयर. ओके. सो प्रीलिम इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक स्टडीज. ओके. अगर आप इसमें बहुत डेप्थ में जाओगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है. आप दूसरे लोग प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो सो दैट आई कैन कोऑर्डिनेट विथ यू ऑल मच बेटर. I can see all, that's why. So please don't try and mug up all the sections. हर एक सेक्शन में एक न एक ऐसी चीज होती है जो आपको याद रखनी होती है. ओके. नाउ दिस टाइम दे हैव एडेड अ लॉट ऑफ न्यू एक्ट्स. सो यू शुड बेसिकली बी मीन्स आपको अपना लॉजिक लगाना है और सोचना है कि इतने सारे एक्ट्स ऐड किए हैं तो अगर अपना स्पेशली अपना लॉ तो है ही है, उसके साथ साथ अपना कंप्यूटर्स है, फिर मेंटल एबिलिटी है, कितना सब है. राइट. सो विथ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यू, इफ आई वर टू सिट फॉर द पेपर दिस ईयर, आई वुड डू अ कैलकुलेशन ऑफ माइनर एक्ट्स में से मिनिमम 2 सवाल या 1 सवाल. सो सो यू शुड बी एबल टू distinguish between what you are supposed to study. Okay, we will do the other acts later on. This is a very good initiative by Mr. Ansari, where you all can discuss on this platform totally free. And it's going to be like very easy for you all to study. Your February and March should entirely be dedicated to studying. And your April month, बिकॉज May 15th को एग्जाम है जितना कि मुझे पता है. April month should please mute yourself, somebody is audio is on. So your April month should be entirely dedicated to revising what you have studied. Okay. Secondly, what you must be focusing on is, many people call and they ask me, should we do MCQs? Yes, definitely you must do MCQs. Please don't do the level of MCQs of Delhi judiciary और हरियाणा जुडिशरी. उसका लेवल बहुत अलग होता है. ओके. सो योर फोकस शुड बी गेटिंग होल्ड ऑफ प्रीलिम पेपर्स. अभी तक सिर्फ 2 अवेलेबल है प्रीलिम पेपर्स ऑफ गुजरात जुडिशरी. राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट्स के आप पेपर्स इकट्ठे करिए कहीं से भी. गूगल करिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल. यू विल गेट ऑल द पेपर्स of the prelims which of Gujarat. I have the papers, I'll share it in the group, you all can take the printout. So you must be practicing. Otherwise they ask, many people ask that should I study, should I practice from this particular publication. It is entirely up to you. But yes, personally your every day you should be practicing MCQs. Daily practice करिए. ओके. जो गुजराती पेपर के, जिसके लिए कंपलसरी है गुजराती पेपर देना, दे मस्ट इवन प्रैक्टिस गुजराती. नहीं तो गुजराती की वजह से भले उसका लॉ कितना भी अच्छा है, दे विल बी आउट ऑफ द रेस. ओके. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू डेफिनेटली कीप इन माइंड बिफोर स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स. नाउ we'll start first with prohibition. Okay, I know we are all practicing over here. Many of us, we come across prohibition related cases. Now please keep the practice aside and please study academic totally. ये पढ़ाई है. आपको इसमें बस इतना देखना है कि मुझे ये वाली एक्ट में मुझे क्वेश्चन, वहां पे आपने जो प्रैक्टिकली केसेस किए होंगे, किसी को बेल, किसी का मुद्दा माल छुड़वाएगा, वो वहां पे नहीं पूछने वाले हैं आपको.
आपको सिर्फ सेक्शन पूछेंगे. सो आई एम श्योर एवरीबडी हैज द बेयर एक्ट्स ऑफ द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949. Okay. Yes. Firstly, yes. So I am assuming everybody has it. Okay. So please open your table of contents. That's how I studied for my prelims. Okay. Your entire see how I used to study. I'll try and show you. It might help you. Your entire table of contents should have your last minute prelim preparation. जहां पे सब कुछ लिखा होना चाहिए सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही सब कुछ. सो दैट आपको पूरी इतनी मोटी बुक खोलना ना पड़े. ओके. सो फर्स्टली ओपन योर टेबल ऑफ कंटेंट्स. इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है. कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. इन विच ईयर वॉज इट पास्ट, व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स. तो 1949 है तो उसमें 49, 48, 47, 46 कर देंगे. ये एकदम बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको जब हम बैराक खोलते हैं तो हम डायरेक्टली खोल देते हैं सेक्शंस, but we don't see the cover of the book of the Bear Act. So basically be aware that when did it come into force, and the last amendment which was made in the Prohibition Act, you should be aware of it because Rajasthan judiciary में एक बार एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि ये पर्टिकुलर एविडेंस एक्ट का जो अमेंडमेंट है कौन से साल और दिन का पूछा था. सो दे पुट सिक्स्थ वो आईटी अमेंडमेंट एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो एविडेंस एक्ट सीआरपीसी वगैरह में जो अमेंडमेंट्स आए थे तो एक पर्टिकुलर डेट है वो आपको याद. तो assuming that even Gujarat works on that same line, we can get factual questions. So this particular factual question you should know when was the last amendment made and when did it come into force. I'm right now just making you go through the index. Okay. You have how many sections in this? Be aware of the section numbers. How many sections are there basically? Okay, there are 149 section and there are 3 schedules. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है प्रोहिबिशन एक्ट में. You can trust me on this. There are few people who might even doubt that, Arey, how is she saying this? But if you see the last 2 prelim papers which are available, and if you ask students who are already into judiciary, who have cleared the judiciary and who have given the past papers, उनको भी आप पूछोगे तो वो लोग आपको 2 ही एरियाज बताएंगे जो प्रोहिबिशन एक्ट में से पढ़ने हैं. सबसे पहला सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस. ये आपको ये एक्ट में आने ही चाहिए. ओके. सेक्शन नंबर 2 we'll go afterwards in detail. I will even make you mark the important sections in it, or means the subsections. So please in your index just mark section 2 which is very important. Now coming to establishment, not at all needed. Please don't waste your time on studying it. Just you may just browse it. Okay, medical board. Okay, fine. It's in section 8 ऐसे. Why I'm telling you this? Because यहाँ पे जुडिशरी का कुछ काम नहीं है एस्टेब्लिशमेंट में. आपको फर्स्टली इतना दिमाग में डालना है कि यू आर अपियरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. तो ये वाला जो एस्टेब्लिशमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें सब आईएएस वगैरह लोगों का काम है. ओके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों का. सो हम लोग थोड़ा वो काम करने वाले हैं. तो वो वाला ये वाला जो चैप्टर है प्लीज इग्नोर. Third is again prohibitions, chapter number 3. You can totally ignore those chapters. However, I will mark few section in chapter number 3 which you all must be aware of it. Please mark section 18. Prohibition of sale to minors. यहाँ पे कोई भी माइनर को any antioxidants intoxicants, sorry, you are not allowed to sell any intoxicants to the minors. आप ये बहुत easily याद रख सकते हो. We say that after 18 a person becomes an adult, right? So section 18, just you have to find your own techniques of remembering sections. So that's how I remembered this particular section. Section 8, अच्छा 18 साल का होता है इंसान तो उसके बाद वो adult बन जाता है, right? So immediately you connect it with prohibition of selling the stuff to the minors. इसमें any intoxicants, not only charas, not only ganja, any intoxicants, सारे के सारे intoxicants are prohibited to be sold to minors. उसके बाद आप जाइए section number 22, prohibition of allowing any premises to be used as a CDH. Okay,
यानी कि कॉमन ड्रिंकिंग हाउस की तरह आप कोई भी प्रिमाइस, आपका घर हो, आपकी दुकान हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, आप अलाउ नहीं कर सकते हो, राइट। फिर ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर यहां से जो है ना 22, 22A, 23, 24, 1A, 1B, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, बहुत सिंपल है। यू डोंट नीड, इट्स नॉट एनी साइंस और साइंस एंड टेक, ओके, मेडिकल साइंस नहीं है ये, बहुत सिंपल है, ऊपर ऊपर से देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 24A, इट्स अ सेविंग क्लॉज। अगर आपको याद रखना है वहां पे ही लिख दीजिए सेविंग क्लॉज। क्यों? और वहां पे ही आप अपने तरीके से लिख दीजिए, सो दैट यू डोंट नीड टू ओपन द एंटायर बेयर एक्ट व्हेन यू आर रिवाइजिंग। दिस चैप्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन आर्टिकल्स। नाउ विच आर दोज आर्टिकल्स? प्लीज राइट इट डाउन। टॉयलेट प्रेपरेशंस, वो अंदर भी लिखा ही हुआ है पर मैं आपको बाहर ही लिखवा रही हूँ। एक टॉयलेट प्रेपरेशंस है, एक मेडिकल प्रेपरेशंस है, एक एंटीसेप्टिक प्रेपरेशंस है, फिर सिरप्स, एसेंस एंड कोई भी टाइप के फ्लेवर्स। अब आपको पता है कोई कोई चीज में मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल डाला जाता है, ओके। तो ये सब चीजें के लिए ये एक सेविंग क्लॉज है, नहीं तो फिर बेचारी दवाई तो चल ही नहीं पाएगी, राइट। सो दिस इज अ सेविंग क्लॉज, सेक्शन 24A, ओके। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, these are the only important sections till chapter number 3 which you must keep in mind. अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 4, इसमें अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस है। अब सी, मैं आपको बिठाकर तो सेक्शंस रटवा नहीं सकती हूँ, ये आप डेली सोने से पहले बगल में सारी बेयर एक्ट्स रखिएगा। रियली यू हैव टू डू दिस, ओके। आई हैव ऑल्सो डन इट, यू ऑल्सो डू इट। Keep the bare act besides you when you sleep, or make a big chart paper in your bedroom and write down every means जो भी CRPC के sections होते हैं। बिकॉज अगर आप गुजरात जुडिशियरी के पास्ट पेपर्स देखोगे प्रीलिम के, जो दो अवेलेबल है, और जो मीन्स वी कैन आस्क आवर सीनियर्स ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी अपियर किए हुए, यू विल ऑलवेज गेट वन आंसर फ्रॉम देम, दैट दे आर आस्किंग वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस। लिटरली दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, ओके। सो आपको जैसे कि अगर सीआरपीसी में आपने सेक्शन 57 पढ़ा हो, ओके, या 154 पढ़ा हो, बस आप 154 के बगल में एक बार लिख दीजिए व्हाट डज इट मीन, ओके। डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड जो भी सेक्शन है वो एक बार बगल में लिख दीजिए। मीन्स वो द नंबर ऑफ डेज, ये सारी चीजें है ना, फैक्चुअल चीजें, वो आपको आनी ही चाहिए वैसी तरीके से। तो आप अपनी तरीके से एक चार्ट पेपर बना लीजिए या कुछ भी हो जिससे आपको चीजें याद रह सके, ओके। एंड ट्राई एंड मेमोराइज सेक्शंस। Nor Mr. Ansari or me or anyone, we cannot make you mug up the sections. We can just guide you how you are supposed to go about it. Okay. So, till now, whichever sections I told you, please keep that in mind. Now, this chapter number 4 is talking about all kind of licenses, permits, and how the licenses can be cancelled. ये अपना काम नहीं है, जज नहीं पास देता है लाइसेंस, ओके। वो आपको जाना पड़ता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में होगा, या जहां से सारे लाइसेंसेस इश्यू होते होते हैं, जैसे कि होटल वेंडर के लाइसेंसेस, फिर शिप पे अल्कोहल पिया जा सकता है उसके लाइसेंसेस। इट्स नॉट द वर्क ऑफ अ जज टू इश्यू लाइसेंसेस। सो ऑटोमेटिकली इट शुड क्लिक इन योर माइंड दैट मैं ये चैप्टर पे क्यों दिमाग फोड़ू। Never has been a question asked in the past 10 years or 12 years from this chapter. Okay. सो जस्ट स्टिल, कभी कभी क्या होता है ना, नहीं मजा, लाइक वो होता है कि नहीं यार वो मैम कुछ भी बोल रही है, मैं तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। तो तुम पढ़ो, और जब पेपर खत्म होगा उसके बाद मुझे कॉल करना प्लीज। जितने भी मैंने बेयर एक्ट्स पढ़ाए होंगे उसके बाद मैंने जितना तुम्हें बताया होगा उसमें से कितना आपको हेल्प हुआ होगा वो आप मुझे पक्का बता सकते हो, ओके। सो दिस पर्टिकुलर लाइसेंसेस, परमिट्स हुए हैं, और दूसरे टाइप के जो जैसे कि कैंसलेशन, अटैचमेंट ऑफ द लाइसेंसेस एंड ऑल, इट्स नॉट नीडेड गाइस। सेम थिंग गोज विद 4A, 4B, 5, 5, 6, nothing. Most important chapter of this particular act is chapter number 7, which we will focus on. इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा काम कौन करता है? जज करता है, ओके।
So chapter 7 should be on your what we say. कोई आपको नींद से उठाए ना, अगर किसी ने पूछा सेक्शन 78 क्या कहता है, सेक्शन 70 क्या कहता है, ओके, वो आपको इमीडिएटली याद हो जाना चाहिए. सो चैप्टर 7, section number 18, section 24A, and section 2 are very important sections of this particular act. We will go, right now I'm just making you go through the table of contents. Excise duty is not at all important, chapter 8. Chapter 9 में आप एक बार सेक्शन नंबर 115A देख सकते हो. वेन्यू ऑफ द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट और हेम्प, कहाँ पे ट्रायल होगी, ओके. और ये सब चीजें है ना, थोड़ी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड प्रोसीजर्स, ये बहुत फैक्चुअल चीज है. जैसे कि सर्टेन ऑफेंसेस कौन से नॉन बेलेबल है, इसमें तो आपको सेक्शन नंबर ही पता होनी चाहिए कौन से नॉन बेलेबल, मीन्स ये सब इसमें लिखा ही हुआ है. सो वो लोग क्या डाल देंगे, एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट these offenses are non bailable. अब ये कौन से सेक्शंस है, आप वहां पे अगर लिखना चाहते हो आप लिख दीजिए, मैंने आगे ही पेज पे लिख दिया है. 65, 65A, 67, 67(1)A and 68. These offenses are non bailable. तो इसमें एक और डाल देंगे वो लोग आपके ऑप्शन में 69, और अगर आप मार्क करके आए कुछ और 69 या कुछ ऐसा मार्क करके आए तो ऑब्वियसली योर आंसर इज रॉन्ग. सो पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन आप सीआरपीसी में पढ़ोगे, जब सेक्शन 46, 47 आप लोग ने शायद पढ़ भी लिया होगा. उसमें जब इंस्पेक्शन वगैरह के लिए वो खिड़की खोलो और दरवाजा तोड़ो वाला सेक्शन जो है, उसमें आपको कैसे एंट्री करनी है, अगर कोई आपको एंट्री नहीं देता है तो खिड़की खोल के आप जा सकते हो या दरवाजा तोड़ के वगैरह, वो वाला सेक्शन है 120, सिमिलर टू सीआरपीसी. दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज समवॉट सिमिलर टू सीआरपीसी सेक्शंस. इसमें आपको सिर्फ टेबल में से ही सारी चीजें मिल जाएगी कि बेल बाय प्रोहिबिशन ऑफिसर सेक्शन 131. तो इसमें आप लिख दीजिएगा उसके बगल में ही कि किस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स यू विल फॉलो एज पर द सीआरपीसी ओनली, ओके. ये है. एंड इश्यूइंग ऑफ वारंट्स है, कौन सा सेक्शन नंबर है, ये लोग डायरेक्टली पूछेंगे आपको. इश्यू ऑफ वारंट्स का फॉल्स अंडर विच सेक्शन एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट, आपको पता होना चाहिए. नाउ अपील्स एंड रिवीजन इज डायरेक्ट 137, 138 इसमें है. वेरी सिंपल टू रिमेंबर. रेस्ट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. फाइन. अच्छा, इसमें एक सेक्शन 146 अच्छी है कि बार ऑफ प्रोसीडिंग्स, मीन्स जो कार्यवाही होती है उसके ऊपर बार लगाना, ओके. तो वो कौन सी प्रोसीडिंग्स के ऊपर है, जो कि सारी चीजें गुड फेथ में इंसान करता है. जो भी प्रोहिबिशन ऑफिसर, सपोजिंग इफ आई एम अ प्रोहिबिशन ऑफिसर, मैंने कुछ चीज की है, सो आई गेट द प्रोटेक्शन बार ऑफ प्रोसीडिंग्स. सो दिस इज बेसिकली, आप लिख दीजिए 146 पे बगल में ही, विच एवर एक्ट्स आर डन इन गुड फेथ, उसके अगेंस्ट सारी की सारी प्रोसीडिंग्स का बार है, ओके. दूसरा इसमें कुछ नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद द, आप लोग ने मार्क कर लिया. आपको कभी ऐसे कुछ लगे तो आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं वहां पे आपको बता दूंगी. लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 2 बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स विच वी आर डूइंग so that you actually become aware of what you are supposed to study, right? And what I expect from you is, in fact from any aspirant, जैसे आज हमने ये पढ़ा, ओके, तो ये अगर आप अपने दिमाग में फ्रेश रखना चाहते हो तो immediately today before sleeping, I know it's not, you can't mug it up, but at least एक बार आप इसको देख लीजिएगा, हमने जो भी चीज पढ़ी है, so that you do not have any issues in it, okay. इसमें डेफिनेशन में आप डायरेक्टली जाइए, उसका सब सेक्शन 7, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस. कॉमन ड्रिंकिंग हाउस का मतलब क्या है, इट्स एनी प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर, प्लीज एनसर्कल लिकर, और कंजम्पशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट ड्रग, यानी दोनों चीजें डाल दी है इसमें, सिर्फ लिकर नहीं है. यू नो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स. उन लोग क्या डाल देंगे पता है ऑप्शन में, consumption means common drinking house is a place where only consumption of liquor is there. True, false, partly true, partly false. और
ऐसे तरीके से। सो यहाँ पे कैसा है ना कि यहाँ पे सिर्फ लिकर नहीं है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, जैसे कि इवन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। सो नॉट ओनली लिकर, देर इज इवन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जहाँ पे मीन्स बोथ ऑफ देम आर कंज्यूम्ड इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। सो इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस जहाँ पे चीज क्या होती है, लिकर एज वेल एज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, वेर इट इज अलाउड। क्यों? अब मेरे घर पे अगर मेरे पास परमिट हो, सपोजिंग मैंने परमिट ली है और मेरे घर पे कोई मेहमान आते हैं, और बिकॉज आई हैव द परमिट एंड I am means that's kind of a gathering of mine only, which I'm conducting. So I'm not doing anything for profit or gain. So my house doesn't become a common drinking house. So इसी में लिखा हुआ है a place where drinking of liquor or consumption of intoxicating drug is allowed for profit or gain of a person who owns it. Firstly, ओनर के ऊपर भी है ये लागू, ऑक्यूपायर भी है जो उसको सिर्फ इस्तेमाल करता है, जो उसको कीप करता है, जैसे कि ये सर्वेंट्स वगैरह जो लगाए जाते हैं ना फार्म हाउस पे, वो, और हैविंग द केयर ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच प्लेस, एजेंट टाइप्स। ओके, तो ये पांचों पांच लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, वेदर बाय वे ऑफ चार्ज फॉर द यूज ऑफ द प्लेस or for drinking facilities provided or otherwise howsoever, and includes the premises of a club also, जैसे कोई भी डिस्कोज वगैरह ऐसे क्लब्स वगैरह है, or any other place which is habitually used. The word is habitually, यानी कि it is being used as a matter of course, ऐसी तरीके से यूज किया जा रहा है for the purpose of drinking liquor. Again they have used it, see, for the purpose of drinking liquor or consuming any intoxicating drug, दोनों चीजें। Now see the number of thing what they have written, by more than one person, यानी एक person से इलावा, without a license granted under this act. When you study the Bare Act, every word is important in the Bare Act. Even a comma is important, even an or is important, and even an and is important. And, or, either, neither, nor, every word is important in the Bare Act. Please don't take it lightly. और के बदले आप एंड मत लगा दीजिएगा, जब आप मेंस का पेपर भी लिखते हो उससे पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। So in your Bare Act, every word is important. Firstly, clearing or the paper or understanding law is only by understanding the Bare Act. Please do not pick up any Pillai or any kind of Takwani or any of those books. If you cannot read the Bare Act, you cannot, means Takwani and Pillai and Kelkar and all कोई काम के नहीं है। आपको Bare Act पहले अच्छी आनी चाहिए। एंड गुजरात जुडिशियल सर्विसेज के लिए बेयर एक्ट इज लाइक अ बाइबल। आप बेयर एक्ट अगर मुंह पे कर लोगे, आपका मेंस का पेपर भी अच्छे से अच्छा निकल जाएगा। सो प्लीज स्टडी द बेयर एक्ट प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन इज सेक्शन 7। इसमें 5-6 कीवर्ड्स है, लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, मोर देन वन पर्सन, विदाउट लाइसेंस, और वो 6 टाइप के लोग, ओनर, ऑक्यूपायर, यूजर, कीपर एंड हैविंग केयर, यानी कि केयरर। तो 5 टाइप के लोग। सबसेक्शन 8 इंपॉर्टेंट, कंट्री लिकर क्या है? जो भी लिकर प्रोड्यूस भी या मैन्युफैक्चर भी किया जाता है इंडिया में, दोनों के दोनों, देसी दारू बोलते हैं, ये वो वाला है सेक्शन 8। ओके, प्लीज कम टू सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर 10। इट हैज कम इन द एग्जाम। डीनेचर्ड, यानी कि विकृत हो जाता है, अनफिट। बेसिकली डीनेचर्ड का मतलब क्या है? इट मीन्स subjected to a process for the purpose of rendering for what? Unfit for human consumption. ऐसा प्रोसीजर उसमें किया जाएगा, उसके अंदर ऐसी चीजें डाली जाएगी जिसकी वजह से अगर ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम करेगा तो उसके लिए हानिकारक है। I hope you are marking these subsections which are important, okay? Just don't listen to me. Please pay attention in your Bare Act, okay? So subsection 7, subsection 8, subsection 10. Subsection 10A, denatured spirituous preparation. Any liquid preparation which is made with as well as containing denatured spirit or denatured alcohol. And what all does it include? Prelim questions डायरेक्ट डाल देंगे। denatured spirituous preparation includes liqueurs, French polish and varnished prepared out of spirit or alcohol. अच्छा, तो उसमें डालेंगे ऑप्शंस में ओनली liqueurs, ओनली French polish
ओनली स्पिरिट और अल्कोहल, और डी में डाल देंगे ऑल ऑफ द अबव, तो आपका ऑप्शन डी होगा. दिस इज हाउ दे फॉर्म द क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सबसेक्शन 10A, राइट. फिर आप जाइए डायरेक्टली सब सेक्शन 13 पे. वो कहता है एक्साइजेबल आर्टिकल्स. कौन से जिसके ऊपर एक्साइज जकात लगती है, जकात पात्र जो एक्साइज लगती है, टोल वगैरह टाइप, तो उसमें कौन से है जो जिसके ऊपर एक्साइज लगेगी. सबसे पहला तो अल्कोहलिक अल्कोहलिक लिकर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए किया जाता है वो. फिर कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, कोई भी हेम्प, ओपियम, राइट. और दूसरा होता है नार्कोटिक ड्रग्स, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू डिक्लेयर किया गया कि भाई इसके ऊपर भी एक्साइज लगेगी. सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, ऑल ऑफ दी अबव टाइप वाला क्वेश्चन. ओके, सब सेक्शन 3. देन गो टू फॉरेन लिकर 17. जैसे कि प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, दिस इज प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया. ओके, इसमें आप सिर्फ सेक्शन देखो, इसमें सेक्शन 2 से कुछ आपको सब सेक्शन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको उसका डिटेल पूछा जाएगा अंदर का. पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको उससे पता चल जाएगा. जो मेरे पास 2 पेपर्स है प्रीलिम के, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए गए हैं प्रोहिबिशन से. 19A देख लीजिए प्लीज. हाउस होल्ड में सर्वेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है. दैट इज अ प्रीलिम क्वेश्चन. Okay, which all the people who are residing and jointly as members in one domestic unit, but does not include servant. यानी कि servant is not a member of the household, right? So this you should be aware of it. अब intoxicating drug subsection 23, उसमें क्या क्या कौन से intoxicating drug है. सबसे पहले तो गांजा, दूसरा है चरस, तीसरा है कोई भी मिक्सचर जो कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से बनाया जाता है, और चौथा है कोई भी नार्कोटिक ड्रग या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर किया है कि भाई ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, ये जो भी मिक्सचर है इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग. सो दीज आर ऑल नोन एज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स. सेक्शन 23A इंपॉर्टेंट, इट हैज कम इन प्रीलिम्स. लट्ठा. लट्ठा से क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है. ओके, सो इट्स अ स्पूरियस लिकर, बनावटी. मींस पहले तो एक्चुअली गुजराती में भी पेपर आते थे, 25 क्वेश्चंस आते थे, तो दैट्स हाउ प्रोहिबिशन से ज्यादातर गुजराती में आ जाते थे पेपर. तो मींस गुजराती का क्वेश्चन जो आता था ना वो प्रोहिबिशन से ही होता था. सो लट्ठा इज अ बनावटी दारू जो बोलते हैं, ये वो है. इट्स अ स्पूरियस लिकर जिसके अंदर क्या है, प्रीलिम क्वेश्चन, मेथनॉल ये आया हुआ है. प्लीज एनसर्कल द वर्ड मेथनॉल. ओके, और एनी अदर पॉइजनस सब्सटेंस, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस. ओके, विच मे कॉज हार्मफुल. सेकेंडली, which may cause any injurious, you know how you are supposed to read the bare act, which may cause harmful to the human body or has injurious effects to the human body or death of the person. So basically there are 3 things which a latha can cause. Firstly, it can cause any harmful effects to the human body. Secondly, it can cause any injurious effects to the human body. Thirdly, it can cause a death of a person. So 3 चीजें लथा की वजह से हो सकती है. This is a prelim question. 3 चीजें means these are the effects of a latha, means if you consume it. और इसके अंदर क्या होता है जिससे डेथ हो सकती है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो, नहीं तो मेथनॉल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लट्ठा. एंड लिकर में आप देख लीजिए क्या क्या है होते हैं उसके अंदर. सारे के सारे स्पिरिट्स, डी नेचर्ड स्पिरिट, वाइन, बियर, टॉडी, वो टॉडी यानी टाड़ी जो बोलते हैं गुजरात में, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है. फिर आप डायरेक्टली जाइए उसके ऊपर. इसमें और कोई ऐसे सब सेक्शंस तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार देख सकते हो. इसमें आप एक सेक्शन, सब सेक्शन देख सकते हो. टेरिटोरियल वाटर्स में 12 नॉटिकल माइल वाला क्वेश्चन बन सकता है. सो व्हाट फॉल्स अंडर योर टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, एनीथिंग अंडर 12 नॉटिकल माइल्स, राइट. और टॉडी क्या चीज होती है, जो भी फर्मेंटेड अनफर्मेंटेड जूस होता है, कहाँ कहाँ से मिला जाता है, कोकोनट से या खजूर के पेड़ से या पाम ट्री से या कहीं से भी,
जिससे हम ताड़ी बनाते, नीरा बनाते। अच्छा, नीरा बेचने के लिए भी अगर आपको पता हो ना, लाइसेंस लिया जाता है। नीरा भी आप ऐसे नहीं बेच सकते हो। ओके, मीन्स ओपनली यू कांट जस्ट सेल अ नीरा, दैट इज व्हाई दे हैव पुट इट ओवर हियर। सो बेसिकली गाइस, इसमें तो कैसा है कि ये जो सारे के सारे जो सब सेक्शंस है सेक्शन 2 में, राइट, बिकॉज दिस actually I'm you all must have started filling your forms, okay, and you all are aware of the fact that you all are going to give the exam, right? So I am assuming, and Mr. Ansari is also assuming, that आप लोगों ने एक बार तो सारी की सारी बेयर एक्ट्स देख भी ली होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना रात को उठे और कल डिसाइड किया कि भाई मैं तो जुडिशियल सर्विसेज देने वाला हूँ। ऐसे करके तो किसी ने डिसाइड नहीं किया होगा। मीन्स इट्स अ प्री प्लान थिंग विच गोज ऑन बिहाइंड द बैक ऑफ द माइंड, राइट, कि हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे इस तरीके से, राइट? तो आई एम श्योर एवरीबडी हैज थॉट अबाउट गिविंग दिस एग्जाम, एंड एवरीबडी मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर बेयर एक्ट एट लीस्ट वंस. So I assume that everybody was aware of these subsections even today before we just brushed through it, right? So uh, whatever subsections we have discussed over here, uh, tonight before you sleep, जस्ट गो थ्रू इट वंस, आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा. आप ऐसे याद करिए, अच्छा लट्ठा में क्या था, वो मैम ने बोला था मेथनॉल, आपका आपका एक वर्ड, एक क्वेश्चन निकल गया. फिर टेरिटोरियल वाटर्स में क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल्स. फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, चरस, गांजा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, कोई भी मिक्सचर. ऐसी तरीके से आप याद करिए इसको. ऐसे रटने की तरीके से मत याद करना. try and understand it. Try and make your own keywords, short forms. However, कोई कोई पता है ना वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ सब बनाते हैं अपने कीवर्ड्स वगैरह याद करने के लिए. आप उस तरीके से याद करिएगा. ओके, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए सेक्शन 2. Anybody has any question on this particular thing which you all want me to clarify? I can clarify it. Nobody has any questions? Hello. यस मैम. Anybody has any questions? मैम सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एक बार फिर से जरा क्लेरिफाई कर देते. सेक्शन 2 सब सेक्शन 7. अच्छा, उसमें क्या समझ नहीं आया, आप मुझे बता सकते हो तो मैं आपको ही डायरेक्टली समझा देती हूँ. एक्चुअली मैम उसमें मैं थोड़ा थोड़ा लेट हो गया था, इसके लिए उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बुक अबे मेरे पास अभी नहीं है. तो ये तो गलत बात है. अभी प्रीलिम के लिए तो सिर्फ 3 महीने हैं और आपके पास बुक भी नहीं है. मैं तो फेब्रुवरी काउंट भी नहीं कर रही हूँ और मैं भी काउंट नहीं कर रही हूँ. सिर्फ 2 महीने ही है आपके पास, मार्च जी और जी जी अप्रैल. और ये तो गलत है. और अपने तो गुजरात में है जो सबसे ज्यादा, अपने लोग केस तो इसी के चलाते हैं, प्रोहिबिशन का ही तो सब चलाते हैं. तो भी जी आपके जी पास इसकी बेयर एक्ट नहीं है, ये तो गलत है ना. आपको आपके जी. पास बेयर एक्ट होनी है चाहिए. whoever doesn't have a bear act, please first and foremost purchase a bear act. यस मैम. You have to have a bear act. Who was this who asked me a question so that I can address you with your name? जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहिउद्दीन दरोगा है. अच्छा, अभी देखिएगा मोहिउद्दीन, कि जी कॉमन ड्रिंकिंग हाउस का मतलब क्या होता है. दारू, दारू का वो क्या बोलते हैं गुजराती में, पिट्ठा या जो बोलते हैं ना, जहाँ पे जी 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 लोग जी जाते हैं पीने के लिए, ये वो है. इसमें जी ऐसा मैंने बताया था कि यहाँ पे दो चीजें होती है. एक तो इट्स अ प्लेस जहाँ पे लिकर एज वेल एज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अलाउ किया जाता है, कंज्यूम करना, यानी कि इस्तेमाल करना. और यहाँ ये सिर्फ ऐसा नॉर्मल घर नहीं है. जो मेरे घर में, अगर मेरे पास परमिट है, लाइसेंस है, और मेरे घर में मेहमान आते हैं एंड दे आर ड्रिंकिंग इट, इट्स डिफरेंट. इट्स नॉट अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस. व्हाई? बिकॉज आई हैव अ लाइसेंस. पर जी जी. कॉमन ड्रिंकिंग हाउस वो जगह होती है जहां पे ये दोनों चीजें, लिकर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का इस्तेमाल अलाउ कर रहे हैं, प्रॉफिट या गेन, यानी कि आप अपने प्रॉफिट या गेन पर्पस की वजह से वहां पे ये इस्तेमाल करवा रहे हो. सेकेंडली, ओ. यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी
मोर देन 1%, यानी कि एक से ज्यादा इंसान लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं और ये सारी की सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। थर्डली, जी मैंने आपको एक और चीज बताई थी इसमें कि इट इज बीन हैबिचुअली यूज्ड। ओके, हैबिचुअली मीन्स इट हैज बीन यूज्ड कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन, इट हैज बीन यूज्ड फॉर अ कोर्स ऑफ टाइम। और ये इसके ऊपर कौन कौन हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल? Firstly, the person who owns it. Secondly, the person who occupies it. Thirdly, the person who uses it. Fourthly, the person who keeps it. And fifthly is the person who takes care of it. ओके, जी यानी जी कि केयर टेकर भी, ये पांचों के पांच लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे अगर यहाँ मीन्स यहाँ पे ये लोग ये सब कर रहे हैं और वहां पे रेड हुई और वो लोग पकड़ा गए हो, तो वो जी कॉमन ड्रिंकिंग हाउस माना जाता है। तो इसमें पांच छह की पॉइंट्स है जो मैंने बताए थे सबको। एक तो सबसे पहला की पॉइंट इसमें है लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। सेकेंडली, प्रॉफिट और गेन के लिए यूज किया जाता है। थर्डली, कौन कौन से लोग? ओनर, ऑक्यूपायर, यूजर, कीपर या केरर। फिफ्थली, जो कि हैबिचुअली यूज किया जाता है। एंड लास्टली, विदाउट अ लाइसेंस। एंड या वन जी मोर पॉइंट, मोर देन 1% के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कॉमन ड्रिंकिंग हाउस कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओके सबसेक्शंस। आई गॉट इट Okay, okay, fine. Now थैंक यू मैम just yeah, no problem. Now directly come, please come to section. I'm sorry, come to chapter number 7. Okay. See, this is a kind of a. See, we have very less time, and this is a minor act, जिससे मैक्सिमम एक या दो सवाल आएंगे। ओके, अब इसके लिए अगर आप सोचते हो कि हम लोग इसके ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग 3-4 घंटे डाले समझे, वो पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज यू मस्ट बी इन्वेस्टिंग दोज नंबर ऑफ आवर्स फॉर मेजर एक्ट्स लाइक द आईपीसी, लाइक द सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारी बेयर एक्ट्स जो होती है उसके ऊपर आपको उतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब जो एक्ट्स है, जो कि जैसे कि इसको हम माइनर एक्ट्स बोलते हैं, राइट? एक हो गई है प्रोहिबिशन एक्ट हो गई है, फिर एक जेजे एक्ट हो गई, और फिर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पीसीपी एंड डीटीआई, ये सारे के सारे माइनर एक्ट है जिससे मैक्सिमम वन क्वेश्चन आएगा या आएगा भी नहीं। हाँ, प्रोहिबिशन से डेफिनेटली आएगा, बिकॉज इट्स अ स्पेशल लॉ, ये अपने स्टेट के लिए बना है, ये लोकल लॉ है। ओके, तो इससे तो 100% क्वेश्चन प्रीलिम में आएगा। और हमारे वक्त मेंस में ये था नहीं सब्जेक्ट, सिर्फ प्रीलिम्स में था, पर इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है आपको। ओके, तो क्योंकि एज ए जेएमएफसी आप लोग को बहुत सारे प्रोहिबिशन के मींस यू आर बेसिकली हैंडलिंग प्रोहिबिशन केसेस ओनली, राइट? सो इस वजह से आपको प्रोहिबिशन वैसे आना चाहिए। पर ऐसे मीन्स आप सोच रहे हो मैं 2-3 दिन एक पूरा दिन 24 घंटे में प्रोहिबिशन एक्ट ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी? प्लीज, ये स्टुपिडिटी होगी। आप ऐसा कुछ मत करिएगा। जितना मैं आपको बोल रही हूँ ना प्रोहिबिशन एक्ट में, आप सिर्फ ट्रस्ट कीजिए और उतना ही पढ़िएगा, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा। प्लीज कम टू सेक्शन 65, इट इज इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सेक्शन 65 का ई क्लॉज। ई क्लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन लोगों ने जो पहले सिर्फ सेल्स और बाइस था, 2017 के अमेंडमेंट के बाद जो पोजेस और ट्रांसपोर्ट भी करता है ना, उसके ऊपर भी इन्होंने पेनल्टी लगा दी है। जो जिसके पोजेशन में से ये मिला इंटॉक्सिकेंट, राइट, या ओपियम या हेम्प या कुछ भी लिकर मिला, उसको भी उसके पोजेशन में या ट्रांसपोर्ट, इसलिए तो हम ट्रक्स वगैरह वो होती है मुद्दा माल, राइट? तो इसकी वजह से उसको जब्त किए जाते हैं। सो पोजेसर एज वेल एज अ ट्रांसपोर्टर is also included, not only the seller or the buyer. That is why this particular section is important, because this word possesses and transports, it was especially been added, amend करा गया था 2017 में, ओके, ऑर्डिनेंस के जरिए, और फिर ये ऐड किया गया है। आई विल रीड द सेक्शन। पेनल्टी फॉर इलीगल इंपोर्टिंग एटसेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स और हेम्प, whoever in contravention of the provision of this act or any rule, regulation, order made or having any license, pass, permit, authorization
जो कि ग्रांट किया गया है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है इंटॉक्सिकेंट, हेम्प या ओपियम, अदर देन ओपियम, आई एम सॉरी, अदर देन ओपियम, यानी कि ओपियम इज नॉट इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 65। ओपियम के लिए अलग सेक्शन है। मैन्युफैक्चर करता है या कंस्ट्रक्शन करता है या वर्क इन अ डिस्टिलरी और अ ब्रूअरी, राइट। नहीं तो बॉटलिंग करता है, जहां पे बॉटलिंग ऑफ लिकर होती है। सब सेक्शन ई वेरी इंपॉर्टेंट, पोजेसिंग मींस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि does section 65 only include selling or buying? No, it includes possessing, transporting, selling or buying intoxicants or hemp, right? Opium not included. So section 65 के बगल में अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले तो ई को हाईलाइट कर दीजिए, जो ई का ई सब सेक्शन है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके अलावा ओपियम नॉट इंक्लूडेड लिख दीजिएगा वहां पे। uses, keeps or has in his possession any materials, stills, utensils, यानी ये सारी जो बनाने की चीजें, तो ये सारे के सारे लोगों को सेक्शन 65 लागू होता है। उसकी पनिशमेंट कितनी है वो आप देख लीजिएगा। ऑन कन्विक्शन ऑफ ईच सच ऑफेंस with imprisonment for a term which may extend to 10 years and with fine which may extend to 5 lakh। लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम ऑफेंस है तो 2 साल तक की सजा हो सकती है और और 1 लाख तक का जुर्माना। और सेकेंड ऑफेंस है तो आपको 3 साल और 2 लाख, और अगर आपका थर्ड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो इतना। ओके, सो सेक्शन 65 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 65 डबल ए, इसमें वो 20 लीटर्स है मिनिमम वाला, आप इसमें बस इतना याद रखिएगा, 20 लीटर्स लेस देन द क्वांटिटी एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में। वो मैं आपके साथ, वो मेरे पास है वो ऑफिशियल गैजेट का पिक्चर, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो वो मिनिमम क्वांटिटी अपने स्टेट में डिक्लेयर की गई है 20 लीटर की। तो अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आए व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी विच हैज बीन मेंशन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज 20 लीटर। सो नॉट विथ स्टैंडिंग, रहने दो जो कि कहा गया है 65 में, जो कि सेल बाय पोजेस या ट्रांसपोर्ट करता है एनी इंटॉक्सिकेंट विच इज लेस देन द क्वांटिटी as specified in state by the state government in the notification in the official gazette shall on conviction be punished। यानी कि जो 20 लीटर वाली जो मिनिमम क्वांटिटी है, राइट, लेस देन दैट ऑफेंस के लिए कितनी साल की सजा है, इसमें सिर्फ मे एक्सटेंड है, राइट, 3 years एंड विथ अ फाइन, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 65A लट्ठा से रिलेटेड है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको डेथ भी मीन्स इफ यू आर कन्विक्टेड द पर्सन कैन बी हैंग टू डेथ, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, नहीं तो 7 से 10 साल की सजा। सो अगर आपको पूछे कि प्रोहिबिशन एक्ट में कोई भी ऐसा पनिशमेंट है जिसमें डेथ दी जा सकती है लट्ठा के लिए, अगर आपने लट्ठा बेचा या कुछ भी हो। सो 65 डबल ए एंड 65A आर इंपॉर्टेंट सेक्शन विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, राइट। अभी उसके बाद देखो ये पेनल्टी में भी आप देखोगे ना, रिपीटेडली क्वेश्चंस आए गए हैं, रिपीटेडली। ये वाले चैप्टर में से भी 65 से आएगा, नहीं तो 65 डबल ए से आएगा, नहीं तो 65A से आएगा। ये वाले जो अब सेक्शंस है देख, हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, जो कि जनरली एनी एस्पिरेंट गलती करता है इंक्लूडिंग मी, हम लोग है ना नंबर ऑफ इयर्स रटने की कोशिश करते हैं कि कितने साल की सजा होगी। प्लीज गाइज डोंट ट्राई एंड डू दैट। 100 मार्क का पेपर है, राइट, एंड आई थिंक 100 ही क्वेश्चंस है, राइट। सो उसमें से आपको मैक्सिमम ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा पेपर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ पनिशमेंट और नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन से ही रिलेटेड आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चंस, ऐसा तो नहीं है, एक या दो आएंगे। सो प्लीज डोंट ट्राई एंड remember means see now this entire chapter 7 of the prohibition act, उसमें पूरे के पूरे सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स और अमाउंट ऑफ फाइन बताई गई है, अमाउंट और नंबर ऑफ इयर्स। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप सारे के सारे नंबर ऑफ इयर्स याद करोगे, अदरवाइज यू नीड टू हैव द माइंड ऑफ एन आइंस्टाइन और अ रामानुजन, जिसमें आपको सब के सब नंबर्स याद रह जाए। एक तो सेक्शन नंबर भी याद रखनी है अपने को, फिर ये भी याद रखना है, तो इट बिकम्स टू मच। सो इसलिए
इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक तो 65, 65 डबल ए और 65 ए, आपको ये तीन सेक्शंस के ये तो याद रह ही जाएंगे, क्योंकि दिस इज कमिंग इन कॉमन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, राइट? सो लट्ठा के लिए तो पनिशमेंट आपको बताई गई है कि मैक्सिमम इसमें पनिशमेंट आपको डेथ दी जा सकती है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो इसमें आपको रटने की कोई जरूरत भी नहीं है, राइट? नाउ कमिंग टू 66, ये सब इतना वो नहीं है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर इलीगल कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ हेम्प एंड अदर मैटर्स, इसमें कुछ नहीं है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जाइएगा सब सेक्शन 2 पे, कि अगर आपके ब्लड में, अक्यूज्ड के ब्लड के अंदर जब पकड़ाया गया है वो आदमी, नॉट लेस देन 0.05% आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 0.05%, राइट? बट बर्डन ऑफ प्रूफ किसके हो पर होगा कि भाई मैंने तो मेडिकल पर्पस के लिए ये कंज्यूम किया था, ऑब्वियसली एक्यूज्ड के ऊपर, राइट? सो एक्यूज्ड को बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर जाएगा, जिससे उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैंने तो ये अल्कोहल है ना, शराब, मेडिसिन की वजह से ली थी, मौज मस्ती के लिए नहीं ली थी, राइट? सो दैट इज अपॉन द एक्यूज्ड बेसिकली, राइट? नाउ दिस इज important, remember that. Now coming to section 66A, 67, 68, ये एक बार ऊपर ऊपर से आप देख लीजिएगा कि अच्छा हाँ ऐसे भी है पेनल्टीज, कि आपने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस जो हमने अभी पढ़ा सेक्शन 7 में, 27 सेक्शन 2 सेक्शन 7 में कॉमन ड्रिंकिंग हाउस किसको कहते हैं, तो हाँ सेक्शन 68 में, हाँ भाई अगर तुमने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोला ना तो मुझे इतने साल की तक की सजा मिल सकती है, राइट? सो this is all there, but important section in this is 65, 65 double A and 65A तो important है ही है, but go to section number 81, penalty for attempt और abatement। अगर आप अबेट करते हो, राइट, किसी को मदद करते हो या किसी को प्रोत्साहन देते हो करने के लिए कोई चीज, कि जा जा तू कर, तू लेके जा यहां से वहां तक ये व्हीकल, तो whoever attempts to commit or abates the commission of the offense under this act shall clause है ये, not may. Like I told you, in law shall and may makes a lot of difference. It's like in आप एविडेंस एक्ट जब पढ़ते हो, shall presume, may presume and conclusive proof वाली चीज है ये। So shall on conviction be punished for such attempting या such abatement as if it is a principal offense, यानी कि जिसने अबेट किया, अगर मैंने अबेट किया या अटेम्प्ट करवाया किसी के पास, या सिर्फ मैंने अटेम्प्ट किया, तो मुझे प्रिंसिपल ऑफेंडर ही माना जाएगा और मुझे भी उतनी की उतनी ही सजा मिलेगी, राइट? सो दिस इज अ कॉन्जॉइंट सेक्शन 81, राइट? नाउ ब्रीचिंग, अगर आपको लाइसेंस, परमिट या ऑथराइजेशन मिली जाती है, राइट? तो अगर आपने उसके मुझे अगर लाइसेंस दिया गया था और मैंने उसका भंग किया हो, तो आई एम ब्रीचिंग द लाइसेंस। तो 82 कहता है अगर आपने उसको ब्रीच किया है तो वो भी एक ऑफेंस है, तो उसके लिए आपको 6 महीने नहीं तो 500 रुपए, नहीं तो दोनों की दोनों सजा हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए भी सजा होगी, राइट? अगर आप कॉन्स्पिरेसी करते हो ये गुनाह करने के लिए। प्लीज गो टू सेक्शन 88, 84, पेनल्टी ड्रंक इन एनी ड्रिंकिंग हाउस, अगर आप कहीं पे पिए हुए मिले कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में, ओके, तो आपको 500 रुपए तक की सजा होगी। इट शैल बी रिज्यूम्ड, ऑब्वियसली, कि आप वहां पे शराब पी नहीं गए थे, वहां पे कुछ हम वहां पूजा पाठ ऐसा तो कुछ करने नहीं गए थे ना। इफ यू आर फाउंड इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, इट विल बी शैल प्रिज्यूम लिखा है, प्लीज रीड द लाइन देयर इन शैल ही प्रिज्यूम, कि obviously you were sitting over there to drink only, obviously not for any good faith purpose, right? So 84 says that, 85 says penalty for being found drunk and for disorderly behavior, जो ऐसे शराब पी के छेड़खानी करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, लड़कियों को ऐसे परेशान करते हैं, ये वो वाला सेक्शन है, सेक्शन 85। whoever gets drunk and creates nuisance या quarrel करता है, लोग है ना एकदम शेर बन जाते हैं शराब पीने के बाद, ये वो वाला सेक्शन है, सेक्शन 85, तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 85 says that. देन सेक्शन 90 तो बस इतना ही कहता है कि कहां पर भी पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, अगर कोई जगह पे मींस एज पर दिस सेक्शन कोई और जगह कोई पेनल्टी नहीं दी गई है, तो उसको कितनी पेनल्टी दी जाएगी, 6 महीने नहीं तो 500 रुपए, नहीं तो
दोनों को दोनों, राइट। नाउ दिस इज 91, 93, 92 तो डिलीट किया गया है, पर 91 डिमांड फॉर सिक्योरिटी फॉर अब्सटेनिंग फ्रॉम कमिश्नर ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। एक काम करिएगा, 91 के बगल में सिर्फ पीस लिख दीजिएगा, और 93 के बगल में आप लिख दीजिएगा गुड बिहेवियर। तो वो क्या है ना, कोर्ट आपके पास बॉन्ड भरवाती है कि भाई मैं, दिस इज लाइक, आपके पास जब आप सीआरपीसी में पढ़े होंगे सेक्शन 106 और 110, 91 you have to, means you remember section 106 of CRPC, and 93 you remember section 110 of CRPC, राइट। जो आपके वहां पे आपके पास डीएम और एसडीएम बॉन्ड भरवाते हैं कि भाई हम गुड बिहेवियर रखेंगे, ओके। ये वो वाला, तो 93 के बगल में भी बॉन्ड लिख दीजिए, 91 के बगल में भी बॉन्ड लिख दीजिए। 91 के बगल में पीस लिखिएगा, 93 के बगल में आप लिख दीजिएगा गुड बिहेवियर। 91 में कोर्ट भरवाएगी आपके पास बॉन्ड, और 93 में डीएम या एसडीएम भरवाएगी बॉन्ड, बस इतना है। और 94 वाला जो है सेक्शन, जैसे कि हमने इसी में सेक्शन 18 पढ़ा जो माइनर्स से रिलेटेड है, जहां पे आप माइनर्स को कोई भी इंटॉक्सिकेंट नहीं बेच सकते। सिमिलर 94 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स। जो माइनर होता है, ओके, उसको आप माइनर जो होता है उसको उसके लिए बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करेगा, है ना, उसका ऑब्वियसली लोकल गार्डियन होगा, वो ही बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। बस इसमें और कुछ नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप उसको इसमें जाइएगा, क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में, और उसको साथ में सारे के सारे एनसर्कल कर दीजिए। 98, 99, 100, 101, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम में। 98 में प्लीज पे अटेंशन टू एवरी वर्ड आई से। 98 में वो लिखा हुआ है थिंग्स विच आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, वो बोलते हैं ना खालसा कर, वो है। तो 98 में चीजों के बारे में बताया है, कौन सी चीजें कॉन्फिस्केट की जा सकती है, ओके। 99 में क्या करते हैं कि ये जो चीजें जो कॉन्फिस्केट की गई है ना, उसको हम रिटर्न कर सकते हैं बोनाफाइड ओनर्स को, जो उसका रियल ओनर है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, 99 वो कहता है, राइट। तीसरी चीज इसमें क्या है, प्रोसीजर इन कॉन्फिस्केशन, ये आया हुआ है प्रीलिम में, डायरेक्टली उन्होंने पूछा है प्रोसीजर इन कॉन्फिस्केशन फॉल्स अंडर विच सेक्शन, और इन्होंने ये चारों की चारों सेक्शन एक के बाद एक नीचे रख दी गई है, 98, 99, 100 एंड 101, ओके। तो ऑब्वियसली यू विल गेट कंफ्यूज, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी और मैं खुद रॉन्ग लिख के आ गई थी, बिकॉज मेरे दिमाग में तो मैंने सिर्फ रट ली है 98, 99, कौन सी चीजें खालसा की जा सकती है, कौन सी चीजें रिटर्न। अब मुझे क्या पता था वो तीसरा सेक्शन पूछेगा प्रोसीजर, तो प्रोसीजर कौन से सेक्शन में लिखा गया है, 100 में, ओके। सो 98 इज कौन सी चीजें आप कॉन्फिस्केट कर सकते हो, 99 इज उस कौन आप रिटर्न कर सकते हो, 100 बता रहा है कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, ओके। और 101 बताता है पावर ऑफ द कलेक्टर, कि वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसको सेल ऑफ कर दो, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर दो, है ना। वो होता है ना, मीन्स आप लोग ने देखा होगा टेलीविजन पे जहां पे रोड रोलर पूरा का पूरा वो दारू की बोतल के ऊपर चलाया जाता है, राइट। सो दोज वर थिंग्स विच वर कॉन्फिस्केटेड, राइट। फिर पर उसको ऑर्डर दिया कि भाई इसको आप एक काम करिए, इसको आप बेच दीजिए, नहीं तो इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सो दिस 4 सेक्शंस गाइस, 98, 99, 100, 101, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप देम इन माइंड। ये पूरी ये है ना, चारों की चारों सेक्शन ऐसे जो आगे है ना अपना टेबल ऑफ कंटेंट, वहां पे उसको जाके एनसर्कल कर दो, मीन्स चारों की चारों सेक्शंस को, और वहां पे कॉन्फिस्केशन लिख दो, so you will automatically remember these 4 sections, right। फिर 102 बात करता है forfeiture of any publication containing advertisements matters which solicit the use of, आपको इतना पता है ना कि गुजरात में हम न्यूज़पेपर में ऐसी कोई भी एड नहीं डाल सकते जो कि प्रोमोट करेगा अल्कोहल, इसीलिए ये सारे के सारे रेड क्या कौन से ये सब होती है ना, ये लोग बहुत होशियार होते हैं, ये लोग पानी की बोतल से एडवर्टीजमेंट करते हैं, मीन्स दे आर नॉट पुटिंग अल्कोहल, बियर बॉटल ऐसा वैसे के थ्रू नहीं करते, क्योंकि गुजरात में अलाउड नहीं है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में या होर्डिंग में ऐसा कुछ भी किया हो, तो वो पूरी की पूरी चीज फॉरफिट की जाएगी,
ओके, लास्टली प्रिजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ये शाल प्रिज्यूम क्लॉज है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि भाई आपने तो गुनाह किया ही है। तो 101, 102, 103 इंपॉर्टेंट है। 104 बस इतना कहता है कि ऑफेंसेस जो होती है 104 से ऐसा बेसिकली कह रहा है कि योर ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, राइट। तो वो तो पता है ना आपको, कंपाउंडिंग मींस सुलह करवाना। तो ये है 104 तक की जो आपकी सेक्शंस है, इसमें आपको इतना पता होना चाहिए। स्टिल आई विल मेक यू जस्ट गो थ्रू इट फटाफट, एंटायर चैप्टर नंबर 7। इसमें आपको 65, 65 डबल ए, 65 ए आपको पता होना चाहिए। इट शुड बी ऑन योर fingertips, like you should be knowing it very well, these particular three sections: 65, 65 double A and 65A. Then section number 81 which talks about penalty for attempting या abating, जो attempt करता है या जो abate करता है उसको भी किया जाएगा। अगर 82 कहता है कि अगर आपने लाइसेंस का ब्रीच किया तो उसकी भी पेनल्टी है। अगर आप कौन वो, हाँ इन्होंने ये भी पूछा हुआ है सेक्शन नंबर 83, गुजराती में कॉन्स्पिरेसी को आई थिंक कहते हैं कावतरू, ऐसा कुछ कहते हैं, तो उन्होंने वो डाल दिया था, राइट। तो ये 83 वाला सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है अगर आप कॉन्स्पिरेसी करते हो तो। सेक्शन 81, 82, 83। फिर 84, 85 तो मैंने आपको बताया कि 84 इज अगर आप कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में मिले हो पिए हुए तो ऑब्वियसली ऐसा ही माना जाएगा कि हम वहां पे पीने ही गए थे। और 85 कहता है कि अगर आप ड्रंक होके बाहर रास्ते पे छेड़खानी, न्यूसेंस, गाली गलोच, क्वारलिंग करना, ये वो ईव टीजिंग करना, छेड़खानी करना, तो वो 85 है, राइट। और फिर डायरेक्टली मैंने आपको बोला 90, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। कहीं पे अगर पेनल्टी नहीं दी गई है तो 90 कहता है भाई उसको 6 महीने, नहीं तो 1,000 रुपए, नहीं तो दोनों की दोनों सजा। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया 93, 94 जो कि सॉरी 93, 94 होता है, 91, 93 एंड 94। 91 कहता है पीस के लिए आपको लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा, राइट। और 93 कहता है गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा। और 94 कहता है माइनर्स के लिए कौन बॉन्ड भरेगा, राइट। उसके बाद आप ये वाले सेक्शंस पढ़िएगा 98, 99, 100, 101 which are all confiscation related sections. 104 talks about अगर offenses को समाधान करवाना हो, कंपाउंडिंग, वो आता है 104 में। I skipped one particular thing that was, जैसे मैंने आपको बोला ना 98, 99, 100, 101 एक साथ पढ़ना है, वैसे आप पढ़िएगा 94A, 95, 96 एंड 97 एक साथ पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिकली, वो बेसिकली पुलिस के लिए है तो आप वहां पे बगल में लिख दीजिए पुलिस। 94A कहता है पनिशमेंट फॉर फेलियर इन ड्यूटी बाय प्रोहिबिशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर। कोई पुलिस ऑफिसर जानबूझ के वो वहां लोकेशन पे पहुंचा नहीं, ही वॉज डिलेइंग, होता है ना, सेटिंग वेटिंग हो जाती है कुछ, तो ये उसकी ड्यूटी का उसने वो भंग किया है, ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी, सो दैट इज 94A। 95 कहता है वेक्सेशियस सर्च, सीजर या अरेस्ट, डिलेस करवा रहा है, वेक्सेशियस डिले है ना, ढील होती है उसने छोड़ी है, सो दैट इज 95, 96। एंड पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट फॉर एस्केप ऑफ पर्सन अरेस्टेड, कोई पुलिस वाले होते हैं ना जिसकी सेटिंग हो गई होती है तो वो अक्यूज्ड पर्सन को भागने देते हैं, तो ये वो है। सो 94A, 95, 96 एंड 97, इट दीज आर ऑल पनिशमेंट फॉर प्रोहिबिशन ऑफिसर्स एज वेल एज पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी ड्यूटी करने में, words I'm trying to tell you that 94A, 95, 96 and 97 is basically for those police officers or those prohibition officers who have failed to perform their public duty, right? So these are the punishments for them, not the accused. This is the punishment for the prohibition officers or the police officers. And 98, 99, 100, 101 guys, very important section, confiscation related सारे के सारा वो खालसा करते हैं, कौन सी चीजें खालसा की जाएगी, कौन सी डिस्ट्रॉय की जाएगी, कौन उसके ऊपर ऑर्डर देगा। बट ये अंदर का कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपको डायरेक्टली पूछ देंगे थिंग्स लाइबल टू बी कॉन्फिस्केटेड इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन, आपको डाल देंगे
98, 99, 100, 101, आप वहां पे कंफ्यूज, और वो ऐसे नहीं डालेंगे 98, 99, 100, 101, वो डालेंगे 100, 98, 101 और 90, 99। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एटलीस्ट 90 एक साथ सडंग लिखेंगे तो थोड़ा तो दिमाग में आएगा, हाँ भाई वो 98 था। पर ये ऐसी तरीके से वो लोग लिख देते हैं ऑप्शंस में, राइट। सो दिस इज कॉन्फिस्केशन रिलेटेड। 102 तो मैंने आपको बताया, जो जहां पे एडवर्टीजमेंट्स में दारू का या कोई भी इंटॉक्सिकेंट का पब्लिसिटी होता है, वो चीज को हम फॉरफीट कर देंगे, जब्त कर लेंगे। और 103 बोलता है प्रिजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन सर्टेन केसेस। शाल प्रिज्यूम क्लॉज है, इसको प्रिज्यूम ही करेंगे कि भाई इसने ये गुनाह किया है। 104 लास्ट सेक्शन है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। हेलो, यू कैन हियर मी? कोई कह सकता है मुझे सुन सकते हो आप? Yes, ma'am. Please somebody Yes, ma'am. speak. जी Yes, we can hear. सुनाई Yes, दे रहा yes. है? सकते हैं। Yeah. यस यस या Yes, सुन ma'am. सकते हैं। हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, जी ma'am. जी सुन सकते हैं। Ma'am, you are कैन audible. यू हियर मी? Yes, ma'am. कैन यू हियर मी? या सुन सकते ओके हैं। ओके, हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये वाले थे चैप्टर 7 एंड सेक्शन नंबर 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो देम बेसिकली, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट विच I'd like to make you go through is powers and duties of officers and procedure, जिसमें कुछ इतना नहीं है, पर इसमें जो प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो कि हमने बोला 94A, 95, 96, 97 में जो उनकी ड्यूटी थी लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी लगी गई थी एज पर चैप्टर 7। पर यहाँ पे चैप्टर 9 में ऐसा बोल रहे हैं वो लोग कि इनकी क्या क्या ड्यूटीज होती है, राइट। तो उनकी ड्यूटी होती है कि भाई जो ब्लड कलेक्ट किया है उसको लैब में भेजो, राइट। दे हैव देयर ड्यूटी टू सेंड द सैंपल टू द लेबोरेटरी। पंचास का वो लोग को मेंटेनेंस लिस्ट मेंटेन करना है। एंट्री, पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, दखल कैसे करना है ना, और कैसे तपासनी करनी है वहां पे। फिर 119 कहता है कौन से जो ऑफेंसेस होते हैं, कौन से वो नॉन बेलेबल है। तो वो तो डायरेक्टली आपको सेक्शन नंबर्स ही याद रखने हैं कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो 65, 65A, 67, 67 1A and 68, these are non-bailable offenses, okay। And besides that, section 131 कहता है बेल बाय प्रोहिबिशन ऑफिसर। कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा बेल देने के लिए इसमें, एज पर द CRPC वाला ही आपको प्रोसीजर। अच्छा, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि दे कैन इवन आस्क दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन प्रीलिम दैट अरेस्ट विदाउट वारंट एज पर प्रोहिबिशन एक्ट इज अंडर विच सेक्शन। सो इट इज अंडर सेक्शन नंबर 126, राइट। सो ये जो 126 है ना, अरेस्ट विदाउट वारंट, जो कि एस्केप करता है, नहीं तो जो अटेम्प्ट करता है एस्केप करने के लिए, तो आप उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हो, 126 कहता है। एंड 127 ऐसा कहता है, वो भी अरेस्ट विदाउट वारंट है, अरेस्टिंग ऑफ ऑफेंडर्स फेलिंग टू गिव नेम्स, ये अपने CRPC में भी है, राइट। तो ये वाला भी आपको अरेस्ट में ही बता रहा है। एंड इश्यू ऑफ वारंट्स कौन इश्यू कर सकता है, मैजिस्ट्रेट इश्यू कर सकता है वारंट, इंपॉर्टेंट है। अंडर विच सेक्शन इश्यूइंग ऑफ वारंट्स इज देयर एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट, ये अपना है सेक्शन, मजिस्ट्रेट का सेक्शन है, इसके लिए आपको याद रखना है मजिस्ट्रेट इश्यू करेगा वारंट टू द प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, नहीं तो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको अरेस्ट वारंट इश्यू करता है, तो वो है 128। सो ये 126, 127 और 128 ये थोड़े आपको सेक्शन नंबर याद रखने हैं। 131 बेल बाय प्रोहिबिशन ऑफिसर, कौन सा आप फॉलो करोगे प्रोसीजर, CRPC वाला प्रोसीजर। नाउ मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अपील्स एंड रिवीजन। ये सिर्फ आपको मोटा मोटा याद रखना है कि कौन से सेक्शन में फॉल करता है अपील का प्रोविजन। मींस you have not been happy with the order or something, where you can appeal under section 137, and where you can go for the revision, means where the revision provision is given, right, it is under section 138, right। और अपील में आप जा सकते हो 60 डेज, नहीं तो 90 डेज के अंदर। और रिवीजन में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम द प्रोहिबिशन ऑफिसर्स,
है ना, फेर तपास करते हैं ना, ये वो वाला सेक्शन है। सो सेक्शन 137 एंड 138, क्योंकि देखो अपील रिवीजन के लिए तो कितनी सारी है। एक तो सीआरपीसी है, उसमें भी अपील और रिवीजन और रिव्यू के अपील रिवीजन है, राइट, फर्स्ट अपील सेकंड अपील वगैरह। फिर सीपीसी में भी है, कितने सारे। सो दे विल डायरेक्टली आस्क यू दैट एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट appeal falls under which section. So you should be aware it falls under 137 and revision falls under 138. दूसरा तो आपको ये सारी चीजों में मैंने आपको एक बताया था कि सेक्शन 146 क्या कहता है, बार ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो कार्यवाही की गई है सारी की सारी, ये प्रोहिबिशन ऑफिसर्स या ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ने, दे हैव डन ऑल दैट इन गुड फेथ। सो जो भी चीजें गुड फेथ में की गई है उसके अगेंस्ट बार है, मींस यू हैव, देयर इज अ बार ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही नहीं की जाएगी। एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और सूट अगेंस्ट ऑफिसर्स, यही कौन से ऑफिसर्स की बात कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफिसर्स या ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के लिए। तो क्या लिमिटेशन पीरियड है इसमें, 4 months। तो प्लीज जस्ट राइट इट डाउन इन योर टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो आगे सारे के सारे सेक्शंस एक साथ होते हैं वहां पे, तो आप वहां पे लिख दीजिए 4 months, राइट। सो एज एंड कितने स्केड्यूल्स है ये पर्टिकुलर एक्ट में, द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट में, इसमें 3 स्केड्यूल्स है, राइट। दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछेंगे नहीं, बट जस्ट यू नो व्हेन यू आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस मैंने कहा ना, जैसे कि हम बैरक खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधे के सीधे हम डायरेक्ट सेक्शंस खोल देते हैं। हमने फ्रंट पेज तो देखा ही नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949, और अगर उन्होंने प्रीलिम में पूछ लिया क्वेश्चन कि व्हेन डिड द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट कम इनटू फोर्स, और वहां पे ऑप्शंस लिख दिए गए हैं 1948, 1947, 1949, 1950, और बच्चे सब मार्क करके आए रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने जो उसका वो क्या बोलते हैं, हेडिंग तो पढ़ा ही नहीं है। सो प्लीज डोंट जंप टू बिगर थिंग, जस्ट फर्स्ट फोकस ऑन द स्मॉल थिंग। राइट नाउ इट इज प्रीलिम्स जो हम कर रहे हैं। प्रीलिम में आपको लाने हैं 50 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला है, और 50 मार्क्स के लिए जितना मैंने प्रोहिबिशन एक्ट से आपको बताया है इम्पोर्टेंट करने का, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आई गारंटी यू ऑन दिस, नहीं आएगा। ओके, एंड आई विल मीन्स हम दूसरी भी पहले मीन्स थोड़े अपने माइनर एक्ट्स कंप्लीट करते रहेंगे, सो दैट यू नो मेजर भी चलता रहे। मिस्टर अंसारी इज डूइंग विथ यू 1 मेजर एक्ट, तो मैं जितनी भी छोटी छोटी एक्ट्स है वो सारी निपटा दूंगी। तो इससे क्या होगा, आपका एक मेजर भी खत्म हो रहा है और माइनर भी खत्म हो रहा है। एंड जितना भी हमने आज किया है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, और अपना मीन्स वो व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है, उसमें आप डाल दीजिएगा आपको कोई चीज में क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हुई है, नहीं समझ आई है। सो आई विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दैट, मीन्स यू नो डायरेक्टली आई विल टेल यू वेयर यू नीड टू फोकस ऑन। Right now, I was thinking actually to complete 3 acts today, but I don't think it's possible. Right? So, अपने next, I think after a day or 2, Monday को या Tuesday को, we will do JJ act. ऐसे करके एक करके minor acts हम complete करेंगे. I think this is enough for the Gujarat Prohibition Act. Now we'll continue. I think you all can leave the class now, and we'll continue with the next act in the next class. And you have any queries with respect to this particular subject, just drop a message in the WhatsApp group. Okay? Okay, ma'am. Okay. Okay. Yeah. Thank you. No problem. Welcome. ओके मैम थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप कौन से नाम से है? तो पता नहीं है ना इसमें जी WhatsApp जी group। 3 ग्रुप है, हाँ, JMFC 1 2 3 ऐसा करके है। अच्छा। जी 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 तो मैं मिस्टर अंसारी से बात कर लेती हूँ और मैम आपको बताती हूँ। मैम जी जी हाँ जी। मैम ये अंसारी सर की जो क्लासेस रहती है वो हर रोज कितने बजे होती है मैम? वो तो सर डिसाइड करते हैं ऐसे ही, मीन्स एवरी डे वी विल बी डिसाइडिंग यस क्या मैम, हमें करना है एक्चुअली। यस मैम। मीन्स इट विल बी ऑल मेंशन्ड इन द ग्रुप ओनली। ओके I have one question, ma'am. हाँ हाँ।
मैम कौन सा चैप्टर अवॉइड करना है प्लीज एक बार बता दीजिए। मैंने बोला सिर्फ इसमें 2 चैप्टर पे ही फोकस रखिए, उसके अलावा अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं तो सारे चैप्टर्स अवॉइड करती, सिर्फ एक चैप्टर 7 करती और सेक्शन नंबर 2 करूंगी इफ आई वाज इन योर ओके प्लेस। ओके 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 फाइन उसके फाइन अलावा थैंक यू। अगर आप चाहो तो मीन्स फिर ऐसा मत बोलना, मीन्स मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला कि एक बार यू कैन हैव अ लाइक अपनी आंखें घुमा लेना बेयर एक्ट के ऊपर, ओके, या बट योर मेन फोकस शुड बी सेक्शन नंबर 2 बिकॉज वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट इन एवरी लॉ सब्जेक्ट, बी इट आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट में ओके डेफिनेशन जो होता है ज्यादातर सेक्शन 2 ही होता है, ओके वो सब में इम्पोर्टेंट होता है सेक्शन 2। सो डेफिनेशन तो आपको भूलना ही नहीं है, डेफिनेशन तो करना ही करना है, ओके। और इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 7 इसमें अच्छे से याद रखना। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। एंड द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स जो आप लोग को कहीं पे ऐसे वो हुआ हो, आप वो एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी। ओके नाउ ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट व्हिच आई टेक इज जेजे एक्ट। जेजे एक्ट में क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, सो दैट यू ऑल कैन सी। राइट नाउ यू हैव वेरी लेस टाइम। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन फेब्रुअरी मंथ तो अभी खत्म हो जाएगा एक वीक में, और जो मई महीना है ना 15 दिन, 15 तारीख तो भूल जाओ और 14 तारीख भी भूल जाओ, ओके। मई के जो 13 दिन है उसमें तो आप इतने कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या पढूं और क्या नहीं पढूं, क्योंकि ये बार सिलेबस उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है, ओके। सो यू कैनॉट इन्वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम ट्राइंग टू डू अ पीएचडी ऑन एवरी बेयर एक्ट, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम क्लियर करना है। अगर आप प्रीलिम क्लियर करोगे तो फिर आप मेंस के लिए एलिजिबल होगे, और मेंस कैसा होता है ना, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वो इंसान अपने समझदारी के मुताबिक भी वो आंसर्स लिख सकता है। बट प्रीलिम में तो वो 4 गोलों में से ही एक गोला फिल करना है, ओके। तो अगर आपने वो कुछ गड़बड़ी की तो आपका प्रीलिम का तो मीन्स वो चल, और आपको प्रीलिम में सिर्फ लाने हैं 50 मार्क्स। तो आप इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये भी रट्टा मारूं वो भी रट्टा मारूं। नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजी एंड पिकी ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग, राइट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको किस तरीके से गाइड कर सकती हूँ। तो आप you it's up to you, like you must trust me, Mr. Ansari, how we are guiding you all so that you all can ultimately make the best out of it. You're getting it what I'm saying? Yes. Okay. हाँ, अभी आप I think the class is over, so you all can take a leave. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much.